अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डोमर ग्रोथ मॉडल। इन्वेस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड, चेंज इन एग्रीगेट डिमांड एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. When the investment increase, the aggregate demand will also increase, and because when the investment increase, the income will increase, and the aggregate demand will also increase. When investment increase and income will increase by the many times and post k time, then the change in the investment, this is called the multiplier effect. That means that when the investment increases, the income will increase by the many times. By we can say that the investment it will change, then it will cause the change in income by the many times. This is called multiplier effect. So multiplier is equal to k is equal to 1 over s, and s is equal to mps. And so investment affect the income, so we can say that dy over d is equal to k di over dt. So we can represent the change in income over the time. Dy over dt is equal to k di over dt. Dy over dt is equal to 1 over s. We have put the value of the k here, and k is equal to 1 over s, so we will put this value in this here. So k is equal to 1 over s di over dt. The capacity effect of investment is measured by the change in the rate of potential output which economy is capable of producing. If capacity capital ratio is constant, small k over capital K is equal to rho. Small k is a Greek letter and it is represented as a kappa, and the small k represent the capacity or potential output, and the capital K represent the capital. Small k is equal to rho k, and this is a production function. We take the derivative of this function. Small k is basically a kappa, which is a Greek letter and represented by the kappa, and d kappa is equal to rho d capital K. This is small k and this is capital K. dk over dt is equal to rho dk over dt, and so we will take the derivative with respect to time. And dk over dt is equal to I, and this means that the change in investment over time is equal to change in capital over the time is equal to change in capital over time is equal to investment. We will put in equation 1. इक्वेशन 1 में हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये dk over dt is equal to रो I हो जाएगा, यानी कि dk over dt की जगह हमने I पुट कर दिया. इन डोमर मॉडल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो पोटेंशियल आउटपुट के इक्वल हो, और वी कैन से दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम. And aggregate demand is equal to income. So put the y instead of aggregate demand in equation 2. तो ये हम इक्वेशन 2 में यहाँ पर जो है वो जो है वो वाई पोटेंशियल आउटपुट और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की जगह वाई पुट कर देंगे. एग्रीगेट डिमांड की जगह वाई इज इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट एज इट इज रहेगा, एंड वाई इज इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट को कापा से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल के से. वाई इज इक्वल टू स्मॉल के. We will take the derivative of with respect to time. Now we will take the derivative with respect to time. And dy over dt is equal to dk over dt. हमने जो लास्ट इक्वेशन थी उसमें टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया. dy over dt is equal to dk और स्मॉल k over dt आ गया. What is the time path of the investment I, or what is the value of I at the equilibrium? Solution, putting the dy over dt and dk over dt in equation 3. तो dy over dt की जो वैल्यू है वो है dy over dt की वैल्यू है इज इक्वल टू di over dt इंटू 1 over s, एंड d स्मॉल k over dt इज इक्वल टू रो I. अब हम इन दोनों की वैल्यू जो है इक्वेशन 3 में इस इक्वेशन में पुट करेंगे. dy over dt इज इक्वल टू dk over dt, जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट की थी इक्वेशन 3. इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे. dy over dt की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, और dk over dt की जगह जो है ये रो I पुट कर देंगे. फिर जो है नेक्स्ट जो है डी वाई ओवर डी टी. अब हम एस को दूसरी तरफ साइड पे ले जाएंगे और इन्वेस्टमेंट कुछ साइड पे डी आई ओवर डी टी इंटू 1 ओवर आई इज इक्वल टू रो एस आ जाएगा. वी विल सॉल्व इट बाय द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अब हम इसका इंटीग्रेशन जो है ना के थ्रू सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पर जो है वो
टाइम के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन यहाँ पर ले रहे हैं इसी फंक्शन का, तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन जो डी टी से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो है डी आई ओवर डी टी, पहले इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, फिर हम इस वैल्यू की इंटीग्रेशन लेंगे। पहले डी आई ओवर आई की इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर आई इंटू, यानी कि इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 ओवर आई इंटू डी आई। तो वी विल टेक द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट से जो है वो इंटीग्रेशन लेंगे इसी फंक्शन का। डी आई ओवर आई इज इक्वल टू ये 1 ओवर आई जो है ना, इनकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ln ऑफ आई इज प्लस C1 आ जाएगा। फिर हम इसका पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन ली, अब हम इस वैल्यू की इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन जो है ना रो एस डी टी इज इक्वल टू रो एस को कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे इसके लिए, इसलिए हमने इसको रो एस करके फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फिर डी टी इज इक्वल टू रो एस इंटीग्रेशन का साइन और फिर ये डी टी आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये जो हम कह सकते हैं कि हम डी टी इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ना वो 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू डी टी कर सकते हैं। फिर जो है अब हम जो रो एस और इंटीग्रेशन टी ज़ीरो यानी कि टी रेज़ दी पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो हम इसलिए हम जो है वो पीछे इक्वेशन में जो है 1 था बेसिकली, तो 1 की जगह हम टी रेज़ दी पावर 0 पुट कर सकते हैं। फिर रो एस जो है अब हमने इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो इसमें हमने 0 प्लस 1 जो है वो ऐड कर देंगे और फिर इस तरह से +1 ऐड कर देंगे और 0 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे प्लस C2 इंटीग्रेशन आ जाएगी। फिर जो है इसको हमने फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर दी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 4 हमारे पास ये है। अब हम इसमें जो है ना इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली थी पीछे। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी और ln ऑफ आई फाइंड करने C1 को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो C1 प्लस C2 से रिप्रेजेंट होगा, तो ये आ जाएगा। टू ऑब्टेन द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ln ऑफ आई वी विल टेक एंटी लॉग, हम इस इक्वेशन का एंटी लॉग ले लेंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये ln और ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू ये आ जाएगा। और फिर यानी कि ये यहाँ पर हमने पी रो एस टी ई करके इंटू ई रेज़ दी पावर सी, तो ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है। फिर जो है ई रेज़ दी पावर सी ए के इक्वल है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे ए पुट कर दिया, फिर ये हमने जैसे अरेंज कर दिया इक्वेशन को, और एब्सोल्यूट आई इज इक्वल टू आई है, यहाँ पर इसकी जगह आई पुट कर दिया, ई रेज़ दी पावर रो एस टी आ गया। फिर जो है टाइम के रिस्पेक्ट से अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आई टी करेंगे इज इक्वल टू ए ई रो एस टी आ जाएगा। अगर इनिशियल टाइम पीरियड लेंगे जो कि इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, और ये यहाँ पर भी टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है आ जाएगा ये आई ज़ीरो इज इक्वल टू ए ई रेज़ दी पावर 0 आ जाएगा, और फिर ई रेज़ दी पावर 0 1 के इक्वल होता है। फिर पुट दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 5 हमारे पास ये गिवन आई टी इज इक्वल टू ए ई रेज़ दी पावर रो एस टी। फिर हम यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह आई 0 पुट करेंगे, ई रेज़ दी पावर रो एस टी। आई नॉट इज़ ए इनिशियल लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड सो टू ऑब्टेन द इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड पोटेंशियल आउटपुट की इक्वल होगी, एंड इन्वेस्टमेंट मस्ट ग्रो एट द रेट ऑफ द रो एस। तो ये जो है टाइम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का अगर ग्राफ देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट ग्रो एट द रेट ऑफ द रो एस। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रेजर एज फाइंड आउट करना है, तो एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट को रो एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है कि आर शुड बी इक्वल टू रो एस। एज वी नो द कोफिशिएंट ऑफ द यूटिलाइजेशन यू इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई टी ओवर के टी, एंड इफ यू इज इक्वल टू 1 shows full capacity utilization, u is greater than 1 when r is greater than rho s, and u is equal to 1 when r is equal to rho s, u is less than 1 when r is less than rho s, and u is greater than 1 when r is greater than rho s. This means actual rate of growth of investment is greater than required rate, so this will cause the shortage of the capacity. If the u is less than 1 and r is less than rho s, this means actual rate of investment is less than the required rate, and so this will cause the surplus of the capacity. This will cause the surplus of the capacity, and if the IT is equal to I naught e raised the power IT, we take the derivative. अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये डेरिवेटिव लिए तो ये जो है ना आ जाएगा आर आई नॉट ई रेज़ दी पावर आर टी, तो ये आर टी का डेरिवेटिव लिए तो ये आर आ जाएगा टी की रिस्पेक्ट से।
तो ये आ जाएगा। फिर वी विल नो दी डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/s डी आई ओवर डी टी, ये इक्वेशन 5 है जो कि पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वी पुट दी वैल्यू ऑफ डी आई ओवर डी टी इन इक्वेशन 5, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा डी वाई डी टी इज इक्वल टू 1/s और डी आई ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ पर जो है वो हम पुट कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इक्वेशन 7 आ जाएगी। डी वाई डी टी इज इक्वल टू आर एस आई नॉट ई रेज द पावर आर टी, एज वी नो डी स्मॉल के ओवर डी टी इज इक्वल टू रो आई एंड डी स्मॉल के ओवर टी इज इक्वल टू रो आई टी। इक्वेशन 6 है, पुट द वैल्यू ऑफ आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज द पावर आर टी इन इक्वेशन 6। तो यहाँ पर जो है वो हम इस यहाँ पर आई टी की वैल्यू जो ये वाली यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर डिवाइड इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, इक्वेशन 7 को और इक्वेशन 8 को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कैंसिल होकर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और इफ़ आर इज़ ग्रेटर दैन रो एस, ये जो आर है ये रो एस से अगर ज़्यादा होगा, देन डी वाई डी टी इज़ ग्रेटर दैन डी के ओवर डी टी, दिस शोज दैट शॉर्टेज ऑफ द कैपेसिटी एंड दी वाइस वर्सा। सो टू अवॉइड द शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ द कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट शुड बी एट दैट लेवल वेयर द रो इज इक्वल टू R is equal to rho s, and R is equal to rho s shows the razor edge, and R is the actual rate of growth of investment and rho s is the required rate.